میرا آسرا بھی ہے، میرا بھروسہ تجھ ہی پر ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، میرے دشمن میری ہنسی نہ اڑائے، بلکہ تیرا کوئی بھی منتظر پریشان نہ ہو۔ باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم اس اتوار کے ساتھ نئے پورے سال کی ابتدا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آمد کے موسم میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ آمد کا موسم مجموعی طور پر ہم سب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور و خوض کریں، خود کو پڑھیں، خود کی جانچ پڑتال کریں، تولیں اور ٹٹولیں کہ آمد کے ابتدا میں ہم کس حد تک ان اعمال کے ساتھ تیاری کے عمل کو شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب بھی مسیح خداوند کی آمد ہو تو وہ ہم سب کو تیار حالت میں پائے گا۔ آئے ہم خداوند سے یہ فضل مانگیں، برکت مانگیں کہ وہ ہم سب کو اپنا پاک روح بخشے، تحریک دے، بدل دے، تاکہ ہم تیاری کے عمل میں سنجیدگی سے شامل ہو سکے۔ آئے ہم اس بات کو شروع کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگے۔ میں قادر مطلب خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔
आज की इबादत में हम बीमारों के लिए जिनमें नुसरत बीवी, जन्नत अरसलान, बरकत मसीह, अल्लाह रखा, अबूल विलियम, जुल्फ़कार, गुलाम मसीह, बराइसन आशर और इसको इंद्रियास के लिए खुदा इनको और उन सब बीमारों को जो घरों में बीमार हैं, अस्पतालों में उनके लिए इलाज हैं, खुदा इनको कामल शफा बख्शे। शुक्रगुजारी में मूसा यूनुस, शीला आलम, फजील अनवर सोतरा, हीरा रखा, तो खुदा इनकी शुक्रगुजारी को कबूल करे और मेरे खुश अपनी बहन शीला को जिंदगी की कसरत और फरावानी बख्शे। कारोबार के लिए जिनमें शाउल भट्टी और खुरम से खुदा के कारोबार में उनके वसाइल में इजाफा करे और बरकत डाले। मरहूमों में मोहम्मद यासीन, फजल मसीह, रखा मसीह, रेशम, फातिमा, खुरम मसीह, डैनियल सरदार, तारक जहांगीर के खुदा इन मरहूमों को दुआरे रहमत में पूरा बख्शे। अनीला मुनीर के लिए जो आज अपनी सालगिरह मनाती है, कि खुदावंद जिंदगी का जो नाता उसको मुबारक ठहराए। हम दुआ करें। कादिर मुतलिक खुदा अपने मोमिनों को ये पुख्ता इरादा अता करे कि आने वाले मसीह का इस्तकबाल अपने नेक कामों से करे। एक दिन उनमें गिरे जाकर जो उसकी दाहिनी जानब खड़े हैं और आसमानी बादशाही की नाराज पाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से तो तेरे साथ रुल कुछ की अदालत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद का फरमान है, मैं दाऊद के लिए एक सादिक कौमपल पैदा करूंगा। पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफा 33वां बाब 14वीं से 16वीं आयत तक। देखो, यूं खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं कि मैं उस नेक कलमा को पूरा करूंगा जो मैंने इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के हक में कहा था। उन दिनों में और उस वक्त में मैं दाऊद के लिए एक सादिक कौमपल पैदा करूंगा और वो जमीन पर अदल और सदाकत का काम करेगा। इन्हीं अयाम में यहूदा निजात पाएगा और इस्राएल इत्मीनान से सुकूनत करेगा। उस शहर का नाम ये होगा, खुदावंद हमारी सदाकत। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط تسلیکیوں کے نام 3 باب اور اس کی 12ویں آیت، پھر چوتھا باب اور اس کی دوسری آیت۔ جب مسیح آئے تو خداوند تمہارے دلوں کو پاکیزگی میں مضبوط کرے۔ اے بھائیو، خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے، اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہو اور بڑھے، تاکہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے تمام مقدسوں کے ساتھ آئے تو تمہارے دل ہمارے باپ کے حضور پاکیزگی میں بے الزام اور مضبوط ٹھہریں۔ غرض اے بھائیو، ہم تم سے خداوند یسوع مسیح میں عرض اور منت کرتے ہیں کہ جیسا تم نے ہم سے سیکھا کہ کس طرح چلنا اور خدا کو خوش کرنا ضرور ہے، اور جس طرح تم چلتے بھی ہو ویسے ہی اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے کیا حکم دیے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جائے پر خداوند کی برکت ہو۔ ابھی آمد کی شمع روشن کی جائے گی، تو ایسٹ کرسچن کالونی سے شمع جلانے کے لیے میں ان افراد کو دعوت دیتا ہوں کہ آمد کے پہلے اتوار کی شمع روشن کریں جن کی سالگرہ دسمبر کے مہینہ میں ہوتی ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ایسٹ کرسچن کالونی سے وہ افراد شمع جلانے کے لیے آئیں جن کی سالگرہ دسمبر کے مہینے میں ہوتی ہے۔
आपके साथ भी हो। ईद मुकद्दस लूका के मुताबिक हम पढ़ेंगे उसके 21वें वाक्य से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, सूरज और चांद और सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को अज़ियत पहुँचेगा, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे और डर के मारे और इस इंतज़ार में कि ज़मीन पर क्या वाक़ई होगा, आदमियों की जान में जान न रहेगी, इसलिए कि आसमान की कूद हिलाई जाएंगी और तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और जब ये बातें होने लगेंगी तो नज़र उठाकर सर बुलंद कर, इसलिए कि तुम्हारी मंजिल से करीब है। बस अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल अय्याशी और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो और वो दिन तुम पर अंधे की तरह निगाहां आ पड़े, क्योंकि वो रोए ज़मीन के तमाम बशिंदों पर आ पड़ेगा। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम इन सब चीज़ों से जो होने वाली हैं बच जाने के और इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक है। ये है आज की अंजील मुकद्दस और इसके वसीले से हमारी सारी खताएं माफ़ की जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने इब्तिदाइया में कहा
इस अतवार से हम आमद के मौसम का आगाज़ करते हैं और साथ ही साथ नए सूर्य साल में भी दाखिल होते हैं। तो लफ्ज़ जब हम आमद की बात करते हैं तो ये लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ एडवेंटस से महफूज एडवेंटस से निकला है। और इस पर कमेंट करते हुए पोप बेनेडिक्ट 16 कहते हैं कि इसका मतलब है या इसका तर्जुमा है अराइवल, पहुंच जाना, कमिंग आना, और फिर प्रेजेंस मौजूद होना या मौजूद रहना। तो जब हम आमद की बात करते हैं तो जब हम मसीह खुदावंद की पहली और फिर दूसरी आमद की बात करते हैं तो इसमें ये तासुर कायम रहता है। ये कोई एक बार होने की बात नहीं है। आमद वो मुख्तलिफ शाखो सबाक में अपनी आमद के अमल को जारी ही रखता है। वो बेनेडिक्ट कहते हैं कि ये जो इस्तिलाह है आमद, ये एक तकनीकी इस्तिलाह है, टेक्निकल टर्म है, जो किसी बड़े सरकारी अफसर या शहंशाह या बादशाह जब वो अपनी रैयत में किसी मखसूस इलाके का या सूबे का दौरा करता है तो उन मानों में भी ये इस्तेमाल होता है। कदीम ज़माने की जो ज़ुबान है उसमें ये मानी पाए जाते हैं। फिर वो कहते हैं इलाही ज़ात जो माजी में पूरी सरार रही हो, राज में रही हो, पर्दे के पीछे रही हो, अगर वो अपने आप को मुनकशिफ करे, ज़ाहिर हो जाए, अपना ज़हूर दे, और फिर उसका ज़हूर, क्योंकि वो इलाही ज़ात है, अगर वो हमारी इबादत का हिस्सा बन जाए, हम उसकी स्ताइश और पूजा में कायम रहें, तो ये भी आमद है। और ये खुदा की आमद से मंसूब है। जैसे मसीह खुदावंद एक मखसूस वक्त में इंसानी तारीख का हिस्सा बना, इंसानों के दरमियान आया, इंसानों में रहा, वो 2000 और उससे कुछ ज़्यादा अरसा है। तो हम आज भी उस वाक़े को याद करते हैं बड़े दिन के मौका पर। इसी तरह यीशु में खुदा ही मुजस्सम होकर आता है। जैसे बादशाह अपनी रैयत में किसी खास इलाके का दौरा करता है, तैयारी की जाती है, तो ऐसे ही खुदा भी अपनी खुदाई लेकर यीशु में आ गया है और वो हमारा दौरा करता है। वो ज़मीन पर आया है, ज़मीन का हिस्सा बनता है। जब हम मसीह खुदावंद की आमद की बात करते हैं तो ये जो 2 हफ्ते हैं, पहले 2 हफ्ते, इसमें हम मसीह खुदावंद की आमद सानी की बात करते हैं कि वो आएगा। और हमारे ये ईमान का एक बुनियादी नुक्ता है, रसूलों के अक़ीदे में हम ये पढ़ते भी हैं कि वो आएगा जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए। इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। जो रसूलों का अक़ीदा है वो हमारे ईमान का इजहार है, इकरार है। हम इस बात पर कुली तौर पर मुत्तफ़िक़ हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि वो आएगा। आज की पहली तलावत के तनाज़र में देखें, हम देखते हैं ये इर्मिया नबी के सहीफे से ली गई है, 35वां बाब, और हम पढ़ेंगे 14वीं आयत से। देख यूं खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं कि मैं उस नेक कलमा को पूरा करूंगा जो मैंने इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के हक में कहा था। तो जब इर्मिया नबी ये बातें कह रहा है, उस वक्त बनी इस्राएल पर जो गैर कौमें हैं, उन्होंने मोर्चाबंदी कर रखी है, लेकिन असीरी के अमल में वो गए थे। और इस हालत में जब वो परेशान है,
जब यरूशलेम की तबाही की बात होती है तो यकीनी तौर पर उनको इन हालात के अंदर दिलासा देने की ज़रूरत है, उनके ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है, उनकी ढारस बंधाने की ज़रूरत है। और इन हालात के अंदर वो उम्मीद का पैगाम दे रहा है यिर्मयाह नबी। उन दिनों में और उस वक्त में मैं दाऊद के लिए एक सादिक कंबल पैदा करूंगा और वो ज़मीन पर अदल और सदाकत का काम करेगा। तो यहाँ पर वो एक कंबल की बात करता है, जिक्र करता है, जो सादिक है, जो अपने अदल में झोल नहीं मारता, उसके इंसाफ में कोई तफरीक नहीं है, तमीज़ नहीं है, खरीदो फरोख्त नहीं होती। और इस तरह का जो कलाम है वो यिर्मयाह नबी के अलावा इशाया नबी ने भी किया है। मुवाज़ने के तौर पर देखा जाए तो मसीह खुदावंद की पैदाइश की बाबत ज़्यादा नबूवतें इशाया नबी ने की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झलकियाँ यिर्मयाह नबी ने भी की हैं। तो यही बात हम पढ़ सकते हैं इशाया नबी का सहीफा 11वां बाब, इधर लिखा है, लेकिन यस्सी के तना से एक कंबल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नो नहाज उगेगा और उस पर खुदावंद की रूह करार पाएगी, यानी हिकमत और फहम की रूह, मशवरत और कुव्वत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और खुदावंद के खौफ में उसकी खुशनुदी होगी। वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुवाफिक फैसला करेगा, बल्कि मस्कीनों का अदल से इंसाफ करेगा और ज़मीन के गरीबों का रास्ती से फैसला करेगा। तो इशाया नबी ने भी उस कंबल का जिक्र किया है कि यस्सी के तना से एक कंबल निकलेगी। तो देखें, तना जब बज़ाहिर उसमें ज़िंदगी नजर ना आए तो फिर खुदा की कुदरत है ना कि कहीं ना कहीं से, जड़ से या जहाँ से भी कोई ना कोई शाख निकल आती है। तो वो उम्मीद दे रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। दाऊद के घराने से वो ऐसे एक बादशाह की, ऐसे एक शहनशाह की, ऐसे एक हुक्मरान की बात कर रहा है जिसका इंसाफ सदाकत पर मबनी है। और वो इन बातों को आगे बढ़ाते हुए मजीद कहता है, उन्हीं अय्याम में यहूदा निजात पाएगा और यरूशलेम इत्मीनान से सुकूनत करेगा और उसका नाम ये होगा खुदावंद हमारी सदाकत, क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि दाऊद के लिए इसराइल के घराने के तख्त पर बैठने के लिए मर्द की कमी ना होगी। तो देखें, ये रोया दाऊद नबी ने भी देखा। जब वो हैकल बनाने का कसद करता है तो खुदावंद उसको ये आगाही देता है कि उसका तख्त हमेशा तक बरकरार रहेगा। सामुएल नबी की दूसरी किताब है 7वां बाब और हम पढ़ेंगे उसकी 12वीं आयत से। लिखा है, और खुदावंद तुझे खबर देता है तो वो तेरे लिए घर कायम करेगा, और जब तेरे दिन तमाम हो जाए और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाए, और जब मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरी सुलभ से होगी बर्पा करूंगा और उसकी सल्तनत को मुस्तकिल करूंगा, तो वो मेरे नाम के लिए घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत के तख्त को अब तक बरकरार रखूंगा। मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। तो ये नबूवत हम देखते हैं मुकद्दस लूका की इंजील में उस वक्त पूरी हो जाती है जब जबराइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को खुशखबरी देता है कि तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसको बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा। तो हम बात कर रहे हैं यीशु की दूसरी आमद की, और यिर्मयाह नबी उन हालात के अंदर जब लोग मायूस हैं, नाउमीद हैं, गैर कौमों ने मोर्चाबंदी की है, यरूशलेम की तबाही भी नज़दीक है, वो उन सारे
अवामल को देखते हुए जब लोग इंतहाई परेशानी के आलम में हैं, यकीन दिलाता है, उम्मीद दिलाता है। और इर्मिया नबी ने भी बहुत सारे ऐसे यानी मौजूदात पेश किए हैं मसीह खुदावंद के हवाले से। बहुत कुछ कहा है, जैसे इशाया नबी ने कहा है, लेकिन इशाया नबी ने तो बहुत नबूवतें की हैं, लेकिन इर्मिया नबी भी यीशु मसीह की बाबत बहुत कुछ कहता है। आज की तिलावत में वो सादा कंबल की बात करता है। और अगर आप देखें इर्मिया नबी का सहीफा और हम देखते हैं उसके दूसरे बाब में वो मसीह खुदावंद को आब हयात के चश्मे से ताबीर करता है। हम देख सकते हैं इर्मिया नबी का सहीफा दूसरा बाब और 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरी उम्मत ने दुगनी शरारत की, उन्होंने मुझ आब हयात के चश्मे को तरक किया और उन्होंने अपने लिए हौज खोदे, यानी टूटे हुए हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। तो मसीह खुदावंद की बाबत ये कहता है कि क्योंकि मेरी उम्मत ने दुगनी शरारत की, उन्होंने मुझ आब हयात के चश्मे को तरक किया। फिर आप देखें अगर इर्मिया नबी का सहीफा 23वां बाब, वो अच्छे चरवाहे की बात भी करता है। और मसीह खुदावंद ने मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में 10वें बाब में अपनी बाबत ये कहा भी है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। 23वां बाब और 4थी आयत लिखा है, और मैं उन पर ऐसे चरवाहे मुकर्रर करूँगा जो उनको चराएंगे तो वो फिर ना डरेंगे और ना खौफ खाएंगे और ना कोई उनमें से गुम होगा। यूँ खुदावंद का फरमान है। देख, खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं जिनमें मैं दाऊद के लिए एक सादा कंबल पैदा करूँगा जो बादशाह होकर सल्तनत करेगा और दानिशमंद होगा और ज़मीन पर अदल और सदाकत का काम करेगा। तो वो बार बार मसीह खुदावंद की बाबतें ये कहता है। आज की जो इंजील मुक़द्दस है, इसमें मसीह खुदावंद ने भी उन निशानों का जिक्र किया है जो आमद रसानी से पहले इन वाक़यात का कायनात के अंदर इन तब्दीलियों का होना लाजम है। तो मसीह खुदावंद ने उससे थोड़ा सा पहले देखें 19वें बाब में से, तो मसीह खुदावंद जब हैकल की तरफ अपना शागिर्दों के साथ सफ़र जारी रखे हुए, तो शागिर्द दूर से देखकर हैकल की तज़य्युन, आराइश, शान शौकत, तो वो मुतासर होकर कहते हैं कि वाह भाई, ये नज़र के तहाइफ से रास्ता है, बड़े आलीशान मनार बने हुए हैं, पत्थर लगा हुआ है। तो मसीह खुदावंद आगे क्या जवाब देता है कि वो दिन आते हैं, इसका एक पत्थर पर भी पत्थर छोड़ा ना जाए, ये तबाह की जाए। और वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो सवाल उठाते हैं कि खुदावंद ये बातें कब होगी और उसका निशान क्या होगा। तो मसीह खुदावंद उन निशानों का जिक्र करते हैं जहाँ से आज की इंजील मुक़द्दस हमने सुनी। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा पहले भी पढ़ेंगे, जिन हालात के अंदर ये बातें हो रही हैं। यहाँ लिखा है, और जब बाज हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नज़र के तहाइफ से रास्ता है, तो उसने कहा वो दिन आएंगे इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो, पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाए। आगे फिर कहते हैं मसीह खुदावंद, जब तुम यरूशलेम को फौजों से गिरता हुआ देखोगे तो जान लोगे कि इसकी वीरानी नज़दीक आ पहुंची है। तब वो जो यहूदिया में हों पहाड़ों पर भाग जाएं और जो उसके अंदर हों बाहर निकल जाएं, और जो मुफस्सलात में हों उसके अंदर ना जाएं, क्योंकि वो दिन इंतकाम के हैं जिनमें जो कुछ लिखा है पूरा होगा। फिर यीशु कहता है, और सूरज और चांद और सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को अज़ियत पहुँचेगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे इस इंतज़ार में कि ज़मीन पर क्या वाक़ई होगा, आदमियों की जान में जान ना रहेगी। और अगर हम देखें मुक़द्दस मत्ती की इंजील में, तो उधर थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि सूरज अपनी रोशनी ना देगा, चाँद अपनी रोशनी ना देगा। लेकिन इस एक बात का इजाफा जो मुक़द्दस लूका ने किया है कि समंदर की लहरों के शोर से उनकी जान में जान ना रहेगी, वो घबरा जाएंगे यकीनी तौर पर कि क्या होने वाला है, हम क्या करेंगे, वो हौसला हार जाएंगे। और यीशु यही कहता है कि इन हालात के अंदर जब ऐसा हो, ये निशान ज़ाहिर होने शुरू हो जाए,
तो ये जान लो कि फिर इन्हीं हालात के अंदर भी मैंने भी आना है। इन हालात का पहले बनना ज़रूरी है मेरी आमद से पहले, ये होना लाजम है। मेरी आमद से पहले यकीनी तौर पर होगा और इन्हीं हालात के अंदर मेरी भी आमद हो जाएगी। और फिर यसू इस बात से तसल्ली भी देता है, लिखा है, और जब ये बातें होने लगे तो नज़र उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी करीब है। घबराने की बात नहीं, लेकिन ये लाजम है। कायनात के अंदर सूरज रोशनी ना दे, चांद अपनी रोशनी ना दे, कौम पर कौम चढ़ाई करे, ये सारी बातें यसू ने कही हैं। और यही वो अलामतें हैं, यही वो निशानात हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत है। और यसू इन निशानों को पढ़ने के लिए फिर एक तमसील भी बयान करते हैं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, जब उनमें कंपलें निकल आती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नज़दीक है। इसी तरह तुम जब ये होते देखो तो जान लो कि खुदा की बात क्या ही नज़दीक है। तो देखें, बहार के मौसम से पहले तो गज़ा आती है, पहले पतझड़ आता है, दरख्त टुंडमुंड हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, कोई पत्ता नज़र नहीं आता, कोई शाख नहीं होती। लेकिन जब बहार का मौसम आता है तो वही यहाँ जान नहीं लगती, यहाँ उम्मीद नहीं है, तने से शाख निकलती है, जैसे वो कंबल की बात की है इर्मिया नबी ने। तो यसू यही कह रहा है कि फिर निशानों को पढ़ने की ज़रूरत भी है। और फिर यसू फिर वापस तैयारी की बात बोलते हैं। यहाँ लिखा है, बस अपने आप को संभालो, ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल अय्याशी और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हों, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नगाह अचानक आ पड़ेगा। बस अपने आप को संभालो, ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल अय्याशी और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हों। तो अपने आप को संभालो। ये जो अपने आप को संभालना है ना, ये हमारी अपनी ज़ाती दिलचस्पी के बगैर नहीं हो सकता, अपनी जिम्मेदारी के बगैर नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह सकता सर जी तुम मेरे को 1000 रुपया लिया कर उन्होंने रोज का कि तुम मैनू संभालिया, या आप किसी से नहीं कह सकते। ये दिहाड़ी पे नहीं होता, उजरत से नहीं होता। उजरत देकर आप अपनी तैयारी किसी से नहीं करवा सकते। ये अपना आप देना पड़ता है, अपना आप खर्च करना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ये ज़ाती शख्सी और निजी बात है जो तैयारी से जुड़ी हुई है, और ये हम सबको ज़रूरत है करने की। बस अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल अय्याशी और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हों। तो सुस्ती की बात यसू किसके साथ जोड़ रहा है? दिल के साथ। अपने आप को संभालो। और देखें, जो यहाँ बात की गई है ना जिंदगी की फिक्रों की और नशाबाजी की, तो जो बंदे इस बात के आदी हैं या जो पीने के बगैर बचते नहीं, वो समझते हैं कि जब हम पी लेते हैं ना तो फिर जिंदगी की सारी फिक्रें जो है ना वो कुछ वक्त के लिए तो चली जाती हैं। कुछ वक्त के लिए तो हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तो वो अपने लिए फिक्रें बढ़ाते हैं। तैयारी के साथ उनका कोई लेन देन नहीं है। और जिंदगी की फिक्रें, अगर आप देखें मुकद्दस लूका की इंजील में और यूहन्ना की इंजील में भी शायद लिखा है, जब मसीह खुदावंद यरूशलेम जाते हुए आखिरी विजिट करते हैं लाजर और उसके खानदान का, उसकी 2 बहनें मरियम और मार्था भी है। तो जब मसीह खुदावंद जाते हैं तो सबसे ज़्यादा सरगर्मी से जो यीशु को खुशामदीद कहा वो मार्था थी, और वो फिक्रमंद थी खाना पकाने के लिए। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने में, मेज़बानी में दिलचस्पी ले रहे थे। और उसने यीशु से शिकवा भी किया था, क्या यीशु तुझे फिक्र नहीं कि मेरी बहन ने मुझे अकेले छोड़ दिया है काम करने के लिए? तो बाज़ दफ़ा हम भी अपनी तवानाइयाँ, अपनी तवज्जो, अपनी ताकत सिर्फ गैर ज़रूरी सरगर्मियों पर लगा देते हैं। क्रिसमस तो आ रहा है ना, आपने देखा ना भी वो फलाना बच्चा भी मंगन दिया पेंट शर्ट, वो फलाना जोगर मंगन दिया, फलाने ने आ गल की, तो किस तरह पूरा करता है?
تو دعا کے لیے، کلام کے لیے، خدا کے ساتھ وقت دینے کے لیے، گزارنے کے لیے تو ماحول ہی نہیں ہوتا، ہماری توجہ تو بٹ جاتی ہے۔ تو ادھر بات کر رہی ہے، بات یہ کر رہا ہے کہ تمہارے دل سست نہ ہوں۔ نشہ بازی بھی اس کو متاثر کر سکتی ہے دل کو، اور دوسری دنیاوی فکریں بھی دل کو متاثر کر سکتی ہیں۔ تو جو دل کا ہے نا معاملہ، کلام مقدس میں دماغ پر کم اور دل پر زیادہ زور دیا گیا ہے، دل پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، یہ ہے ارمیا نبی کا صحیفہ، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے 29ویں باب میں، تو وہ دعا کے ساتھ جوڑتا ہے، اور مسیح خداوند نے بھی دعا کے ساتھ ہی جوڑا ہے۔ لکھا ہے تب تم مجھے پکارو گے اور جا کر مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پالو گے، جب تک کہ تم اپنے سارے دل سے میری تلاش کرو گے، ہاں تم مجھے پالو گے۔ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب تم سارے دل سے میری تلاش کرو گے تو پھر تم مجھے پالو گے۔ کہ ایک آدمی بھی ادا تیتر بٹے گئے۔ کلام مقدس میں دو دلے بندے کی بات بھی کی گئی ہے، تو دو دلا کون ہے؟ وہی ہے، ایک پیر آگے ایک پیچھے، ایک آگے ایک پیچھے، ایک آگے ایک پیچھے، فیصلہ نہیں ہوتا کہ کرنا کی۔ اور پھر 31ویں باب میں بھی مزید ارمیا نبی نے کہا ہے دیکھ یوں خداوند کا فرمان ہے، وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے سے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کی مانند نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس روز باندھا تھا جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا تاکہ انہیں ملک مصر سے نکال لاؤں۔ اس عہد کو انہوں نے توڑا، حالانکہ میں ان کا خاوند تھا، یوں خداوند کا فرمان ہے، لیکن یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھوں گا، یوں خداوند کا فرمان ہے، میں اپنی شریعت ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دل پر اسے نقش کروں گا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے، اور کوئی اپنے ہم وطن کو تعلیم نہ دے گا اور نہ کوئی اپنے بھائی سے کہے گا خداوند کو پہچان لو، کیونکہ ان میں سے کیا چھوٹے کیا بڑے سب مجھے پہچانے گے۔ تو یہاں بھی خدا یہ کہہ رہا ہے ارمیا نبی کی زبانی کہ میں شریعت کو آپ کے ذہن میں ڈالوں گا، لیکن آپ کے دل پر جیسے وہ 10 احکام لوہوں پر خدا کیے گئے تھے نا کھروچ کھروچ کے، تو میں ایسے ہی اپنے احکام کو آپ کے دل کی تختی پر لکھوں گا، اور پھر بعد میں ضرورت نہ پڑے گی کتابوں کا یا کاغذ کا یا لوہوں کا سہارا لینے کی، آپ یقینی طور پر مجھے پہچانوں گے۔ یہ لیکن تب ہی ہوگا جب ہم اپنا دل کلام کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو دل کا ہی معاملہ ہے، دل کا ہی زیادہ لین دین ہے تیاری کے عمل سے، یہی بات جڑی ہوئی ہے۔ ایک صوفی شاعر کہتا ہے، یعنی وہ عبادت اور خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنے رہنے کی بات کرتا ہے کہ باجوں قلب کہ کریں عبادت، باجوں قلب جے کریں عبادت تے کدے نہ بنے نمازی۔ یہ دل تو بغیر عبادت کر دے نا، صرف ایک ضرور رسیے تے پھر نمازی نہیں تسی۔ باجوں قلب جے کریں عبادت تے کدے نہ بنے نمازی، تے جد تک عشق نہ ہو سی دل وچ رب نہ ہو سی نفس۔ یہ رب نہ اساں ہاتھ ملانا ہے تے پھر دل شامل کرنے تو بغیر نہیں۔ اور یہ شاعر بھی کہتا بھی ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، بس یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ کہ دل تو بغیر عبادت نہیں۔ اور وہ گیت آپ گا رہے تھے جو راستے تیار کرنے کا، وہ تھوڑا سا کہیں گا۔ आ रहा है ज़माने
ताल्लुक अंदर से भी है और बाहर से भी। मिसाल के तौर पर अगर किसी कादा और बंदे ने इधर आना हो और उधर जहाँ अमूमी तौर पर पानी खड़ा रहता था हमारे कब्रिस्तान के आसपास है, तो फिर क्या करेंगे? साफ करना पड़ेगा ना। ये उसकी शान के खिलाफ हो जाएगी बात। अगर इसको लाने बग्गी पर बिठा कर दूसरे तो पैदल ही आएंगे, तो उनके गुजरने का भी कोई सामान करना है कि नहीं? ये तो बैरूनी रास्ता है ना, तो दोनों तरफ बात है। इंसान की राह है सीधी, तो जो अंदर की बात की है वो यसू ने इधर ही की है। यहाँ यसू दिल की बात कर रहा है ना। बस अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल अय्याशी और नशाबाजी और उसकी ज़िंदगी की फिक्रों से सुस्त हों। तो ये अंदर की बात है, तो रास्ता बाहर भी बनाने की ज़रूरत है। अगर यसू आता है, क्योंकि अभी जब हम बड़ा दिन मनाते हैं तो वो वाक़या है जो 2000 साल पहले हो चुका है, लेकिन यसू की दूसरी आमद को भी इसी के साथ जोड़ा गया है। वो सैक्रामेंट के जरिए भी आता है, लेकिन जिस्मानी तौर पर आपको बग्गी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि बग्गी लानी है तो रास्ता है ही नहीं, किस पे बिठा कर लाएंगे? ये बैरूनी रास्ते की बात है। लेकिन यसू ने लाइन लगाई है अंदर के रास्ते, और शायर ने भी इन दोनों बातों को ही इस गीत में परोया है, क्योंकि आगे तो ये भी कह रहे हैं ना, वो अंदर की बात भी कर रहा है कि ये जो बुरी ख्वाहिशें हैं, बुरी रवश है, इसको छोड़ने की ज़रूरत है। तो बुरी रवश को छोड़ने के बगैर भी तैयारी नामुकम्मली रहेगी। तो हमने देखना है ये अयाम जो 4 हफ्ते पाक मकदसिया हमें देती है, हम कहाँ तक अपने आप को तैयार करते हैं। अभी यसू को दिल में आने की ज़रूरत है। यसू आपके अंदर जन्म लेना चाहता है। अभी वो आपको फुरली की और चरनी की उस लिहाज से ज़रूरत नहीं है। अगर आप उधर ही रखते हैं तो फिर हमारा अपना ही फैसला है कि यसू की इधर ज़रूरत नहीं है और फुरली की चंगा लगता है। ये नहीं, अगर उसको अंदर लाना है तो फिर इन्हीं बातों पर अमल पैरा होने की भी ज़रूरत है। खुदा हम सबको बरकत दे, मसीह खुदा के वसीले से। आज हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें और सूरों का अकीदा। हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैर उस गुलाम उसके हाथ में उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और तब्दील किया गया, और सब तीसरे रोज जिंदा में से जिनका आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदमी के पाक में वहाँ से बुजुर्ग और मुर्दों की दावत देने वाला। मैं ईमान रखता हूँ उस कुदस पर, ताकि उनकी रुपया जिस्म के जीवने हमेशा के लिए हम अपनी दुआएं लेते जाए और मुनाजात खुदा के सामने पेश करेगा। आज आमद के पहले अतवार के मौका पर आप सब के लिए, आफताबाद पैरिश की सारी कलीसिया के लिए, आपके खानदानों घरानों के लिए दुआ को है कि खुदा आज के कलाम के वसीले से हमको अपने अंदरून और बातन में झांकने का फजल बख्शे, ताकि हम अपने अंदर से हैरात करके अपनी बदी पर बालबाएँ खुदा की तरफ अपने रजूल आएँ और उन 5 अक्लमंद कवारियों की मानद हम वक्त तैयार रहें, ताकि जब भी दूल्हा की आमद हो तो हम उसके स्वागत के लिए पेश हो सके। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। आए सब बीमारों के लिए जो घरों में, अस्पतालों में बीमार हैं, दुआ करते हैं कि खुदा अपना शाही हाथ बढ़ाकर सब बीमारों को, और बिलखसूस नुसरत बीबी, जन्नत, इस्लाम, बरकत मसीह, अल्लाह रखा, रूम बेगम, गुलकार, गुलाम मसीह, इब्राहिम, अशर और युशवा अंद्रयास के लिए कि खुदा कामिल शिफा बख्शे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। और शफीक मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो तेरे काहिन के जरिए हम में भी छोड़ा गया। बख्श कि जिस तरह आसमान से बारिश होती और वो शादाबी और रोने का बायस बनती है, उसी तरह तेरा कलाम जो हमने तेरे काहिन के जरिए सुना हमें 100 गुना फल लाया। हम शुक्र भी अदा करते हैं कि तूने हमें ये मौका बख्शा
कि हम इस जुगरिस्ती इबादत में अपने नजराने और शुक्र गुजारियाँ तेरे हजूर पेश करें। ऐ खुदा तू इनको कबूल व मंजूर फरमा और बख्श कि जो दुआएं इल्तिजाएं मुनाजातें और अपने नेक इरादे तेरे सामने रखते हैं वो कबूल व मंजूर हो और उनका असर हम अपनी ज़िंदगी में देखें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा मरहूम मोमिनीन हमेशा तक तेरी सलामती में आराम करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा में औलादों को औलाद की बरकत अता फरमा। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा रोजगार के तलाश अफराद को अच्छा रोजगार अता फरमा। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। बैरूनी मुल्क में मुकीम तमाम अफराद की हिफाजत फरमा और इन्हें कसरत से बरकत अता फरमा। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हासिल जमात के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद अपनी उम्मत पर कसरत से बरकत नाजिल फरमा। फजल और सलामती इनके घरानों को व अफराद हासिल हो। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा तूने गाड़ियों को अपने भेदों के बांटने वाले मुकर्रर किया, उनको हिम्मत और दलाई बख्श कि तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लाने वाले बने। पापा आज़म, तमाम बिशप साहबान, तमाम मिनाज साहबान और सिस्टर साहबान की हिफाजत कर। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। पूरी दुनिया में और मुल्क पाकिस्तान में हम लोग सामने कायम कर इस मकसद के लिए दुआ ऐ खुदावंद अनायत कर कि हम मसीह की पैदाइश की खुशियाँ मनाने के लिए इन आमद के अयाम में अपने आप को रूहानी तौर से तैयार करें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। शुक्रगुजारी में मूसा यूनुस ईदा आदम सुहेल और सिद्रा हीरा रखा। खुदा की शुक्रगुजारी को कबूल करे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। शौल भट्टी और पूरा मसीह के कारोबार के लिए मसाइल के लिए कि खुदा बरकत और तरक्की बख्शे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। मरहूमों में मोहम्मद यासीन, फजल मसीह, रखा मसीह, रेशम, फातिमा, उलम मसीह, डैनियल सरदार, तारक दानियल के खुदा इनकी रूहों को अपने दीवारे रहमत में जगह बख्शे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। अलीजा मरीम के लिए जो अपने साल के मनाती है कि खुदा आपको बरकत दे, जिंदगी का ये नया साल मुबारक करे। हम इस मकसद से आखिर जमायत में से और भी कोई दुआ करना चाहते हो मौका है। मैं दुआ करना चाहता हूँ बीमारों के लिए, जो बीमार हैं हॉस्पिटलों में हैं, घरों में, आस पड़ोस में हैं, जहाँ कहीं भी हैं तेरे खुदावंद उन पर अपना शफ़क़त व हाथ बढ़ा ताकि वो शफ़ाफ़ा करते हुए नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं आप दबात के लिए के लिए को ताबूत की फजल और रहमत का फरमाओ ताकि ये इसी तरह तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी ताकत और गुनाह के सच्चे जो दुआएं तेरी कलीसिया इस्तिक़लाल के साथ मांगती है उनको कबूल कर और उनका असर हमारी ज़िंदगी से साथ फरमा। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन।
करो तुम्हें दिया जाएगा, देना देने से मुबारक है। जो देंगे कभी चोर न चुराएगा, उसके माल को न कीड़ा कभी खाएगा।
हर हदिये और नजरानी हमारी सारी हम स्तैश खुदा कादर मुतलक के हजूर में मकबूल हो। तो से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया की बढ़ाई के लिए ऐ खुदावंद हमारे खुदा, इन नजरानों को कबूल कर जो हम खुद ही से पाई हुई नेमतों में से तेरी नजर करते हैं। जो कुछ हम इस जहाँ में अकीदत के साथ करते हैं वो हमें तेरी दायमी निजात का इनाम दिलाए। मसीह हमारे खुदावंद की वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगा। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बार के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। जब वो पहले आया तो उसने हलीमी के साथ बशरियत इख्तियार कर दी, पुराने अहद का वादा पूरा कर दिया और हमेशा की निजात की राह हमारे लिए खोल दी। जब वो अपने जलाल के साथ दोबारा आएगा तो हम बेदारों की उम्मीद के मुताबिक वो नए अहद का वादा भी पूरा कर देगा। इसलिए हम इसको और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सलाम करते हैं। वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाप की खुद ही से खत्म है। हमारी दुआएं कबूल कर और रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबर हों
और हमारे अस्पताल में यीशु मसीह का बदन और खून बना। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र अदा किया, बरकत मांगी, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। इसी तरह उसने खाने के बाद ना का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र अदा किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अगली अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए आया जाएगा। मेरी याद में ये किया। हमारे ईमान का भेद जाने कुर्बान कर दी हमारे लिए, जाने कुर्बान कर दी हमारे लिए, जाने कुर्बान कर दी हमारे लिए। जिंदगी फतेह कर दी हमारे लिए, जिंदगी फतेह कर दी हमारे लिए, जिंदगी फतेह कर दी हमारे लिए। हम रहेंगे तेरे मुंतज़िर हम रहेंगे तेरे मुंतज़िर यीशु, हम रहेंगे तेरे मुंतज़िर यीशु। तू दोबारा न आएगा जब तक यहाँ, तू दोबारा न आएगा जब तक यहाँ, तू दोबारा न आएगा जब तक यहाँ। और सब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी कदर करें। हम आज जी के साथ इल्तिजा करते हैं बख्शते कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तखसीस और उसमें एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस और हमारे उस पर साहिबान की कुल जमात और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामल मोहब्बत अता फरमा। इस वक्त सादर जमात के लिए, प्यारे शाहजाबाद की सारी कलीसिया के लिए, खानदानों के लिए, घरानों के लिए दुआ करें। इनको, इनकी औलाद को, घर बार को, वसाइल को बरकत अता कीजिए।
बीमारों के लिए, जो घरों में बीमार हैं, तालों में जेर इलाज हैं, और जिन्होंने अपने नाम दिए हैं, सबको अपनी दुआ में याद करते हैं। उन सबको सेहत और जिंदगी की मामूली बात। बे औलाद लोगों के हक में जो औलाद की नेमत से महरूम है, उनको भी साबित औलाद ठहरा। उन दोस्तों के लिए, दोस्तों के लिए जो दुआ करने को कहते हैं, उनकी मदद फरमा, उनको इस्तकामत का फजल दे, उनकी काविश को कामयाबी से बना कर। उन अजीज़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो इस दुनिया पानी से चले गए हैं, दुआ करते हैं कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल कर। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारकबाद कमारी मरकम उसके नहायत पाक शोहर मुक़द्दस यूसुफ मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहां तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में जो कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शयां हमेशा से हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। करते हैं हमेशा बदलों से बचा, इन दिनों में इस्लाम की बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी बात को मेरी के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा सुबह से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी पीछा के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलाम के इताअत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। जिंदा खुदा की सलामती का आप सब पर हम ये इस्लाम की एक जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हमें सलाम की हिदायत कर। ये है खुदा का बदला जो हम सब के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं हम सब जो इस बड़े की सियासत में रहते हैं। उसी का वजन और खून हम सब को हमेशा की जिंदगी के लिए
शादी की पुकारें। साजन आरफ मसीह जुबैदा बीबी मागट नीचा का रहने वाला। निकाह करेगा अंबर दुख्तर नसरुल्ला नज़ीरा ईस्ट क्रिश्चियन कॉलोनी हाफसाबाद की रहने वाली के साथ। ये निकाह 2 दिसंबर 2024 को तय पाया है। शाउल शहजाद मसीह मरियम बीबी ईस्ट क्रिश्चियन कॉलोनी हाफसाबाद का रहने वाला। निकाह करेगा मलाइका दुख्तर जवेद मसीह मार्गरेट गुलशन इकबाल टाउन कराची की रहने वाली के साथ। ये निकाह 19 दिसंबर 2024 को तय पाया है। अगर इन निकाहों के बारे कोई किसी कानूनी या शरई रुकावट से आगाह हो तो वो इबादत के बाद फादर जी को इतला करें। शुक्रिया। आने वाला इतवार जो है ये आमद का दूसरा इतवार है और आमद के दूसरे इतवार की कैंडल मगरबी बस्ती के मोमिन रोशन करेंगे और तलावतें भी वो करेंगे और अपने हदिये नजराने भी वो लेकर आएंगे और मुनाजात भी करेंगे। एक बच्चों के हवाले से अनाउंसमेंट है ये सिक्योरिटी की तरफ से। बराए मेहरबानी जब आप अपने बच्चों को चर्च में लाते हैं तो उनको पैसे ना दिया करें क्योंकि वो बाहर जो है वो तंग करते हैं।
अगर आप उनको साथ लाते हैं तो उनको साथ अपने साथ इबादत में बिठाएं ताकि वो भी सीखे। आप सबका शुक्रिया। मैं हम एक बार फिर मुकस्सम हाथ से भी अपने अपने खानदानों की सलामती, सब बीमारों की शफा, अपने जाती इरादों और मुरादों के लिए दुआ करें और मदद मांगें। इस्लाम में मरियम और खुदावंद हमें खुशहाली अता करेगा और हमारी सरजमीन फल पैदा करेगी। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, ये इबादत हमें तेरा खास फजल दिया है। इसके शरीक होने से हम पर ये रोशन हो कि किस तरह इस फानी दुनिया में रहते हुए भी हमारे दिल गैर फानी जहाँ पर लगे रहें और हम आसमानी चीज़ों को ज़्यादा अजीज जानें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो और कातिल मुतलक खुदा बाप और बेटे और उनको उसकी बरकत अब से लेकर हमेशा तक साथ और कायम करें। इबादत हो चुकी खुदावंद के सेवा के लिए शाद